Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammad Yusuf. Today we are going to discuss the veins and their functions, and we will discuss these in two lectures because one lecture may become very long. So before that, one ayah from Holy Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ। ये सूरह नूर की मशहूर आयत है कि ए नबी मोमिने से कह दीजिए कि अपनी नज़रों को झुका लिया करें, अपनी नज़रें नीची रखें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए बहुत ही पाकीज़ा तरीका है, ये उनके लिए बहुत पाकीज़ा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये कर रहे होते हैं। नबी मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें, नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये बेहयाई से रोकने का एक प्रिलिमिनरी चीज़ें। पहले तो सेग्रीगेशन है, मर्द और औरत के अलग अलग दायरा इकार हैं, और फिर पर्दे का एक निज़ाम है, और फिर औरत जब बाहर निकलती है या मर्द भी निकलते हैं अपने काम के लिए, तो फिर ये नज़रों को नीचा रखने का, नज़रों की हिफाजत का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हुआ है। ये बेहयाई से रोकने के प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं। ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है, मोमिनों के लिए पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे खूब बाखबर रहता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लें, से टू द बिलीविंग मैन दैट दे शुड लोअर देयर गेज। बाहर निकलेंगे, अगर सामने औरत आती है या कोई भी गलत बात आती है जिसकी तरफ बेहयाई का शाइबा हो, तो अपनी नज़रें झुका लेने, नज़रें झुका के वहाँ से निकल जाना चाहिए। एंड गार्ड देयर शाइनेस एंड लुक्स that will make far greater purity for them. Verily, Allah is familiar with all that they do. Whatever they do, Allah is familiar. Allah पाक हमें इस बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So we will talk about the functions of veins. One function of vein which is simply they are passageway for the blood back to the heart. जिसे तो ये तो अब आई मीन लेमैन को भी पता है कि कोई ऐसे वेसल्स हैं ब्लड के, हर पढ़े लिखे आदमी को पता है। Veins are responsible for bringing the blood, all the venous blood back to the heart, and heart pumps again in arteries. So besides this passageway function, the veins have got very important function, other functions as well. For example, veins are responsible for the storage of blood. They act as a reservoir. Blood is stored. And very important functions which even you may not have heard. They have got venous pump. They pump the blood. Venous pump comprises of veins, their valves, and skeletal muscles. This whole is known as the venous pump. So there is a pumping mechanism in the veins as well. Heart is a pump, but there is a pumping mechanism in the veins as well. So the venous pump we will discuss. So this is again very important function. Then veins are responsible for the regulation of cardiac output, because cardiac output depends upon venous return. All the blood which is brought by the vein to the heart will pump it. Frank-Starling's mechanism, or Frank-Starling's law. So when the venous return is increased, then the cardiac output is going to increase, and vice versa. If the venous return is very low, then the cardiac output will be very low, the person will go into shock. So the regulation of cardiac output, very important function of veins. ये veins का काम है. Then they are responsible for redistribution of blood. ये storage of blood के साथ ही आप इसको शामिल कर सकते हैं. They are reservoir. When the blood is required somewhere, then they donate blood, they give blood, they store किया हुआ है. So the redistribution of blood according to the requirement. Blood जब ज़्यादा चाहिए arterial से, for example, a person has blood, bleeding हो गया है,
accident, bleeding. So then read 64% of the blood is normally, हमने पहले भी कई दफा डिस्कस किया, आज फिर वो आएगी स्लाइड. 64% normally is the blood in the veins, and when the bleeding occurs, this 64% may become only 60%, only 50% blood will be shifted to the arterial side. So redistribution of blood according to the requirement. So these are very important functions of veins. All these functions we will discuss. So venous pressure. Veins start from the venules. That is at the venous end of the capillaries, where the pressure inside the capillaries is 10 millimeter of mercury. So from where the venules will start, and then the medium sized veins and the bigger veins and the bigger veins. So the pressure starts from 10 millimeter of mercury normally. 10 millimeter of mercury, and so pressure, blood only flows from higher pressure to lower pressure. This is must. Pressure difference is must for the flow of the blood. So if it is 10, then the next segment should be having less than 10. Only then blood flow will be possible. So as we are moving from the venous end of the capillaries, so there is reduction in the blood. Gradually there is reduction in the venous pressure. उसको ब्लड प्रेशर नहीं बोलना होता आमतौर पर, ब्लड का ही प्रेशर है, बट वीनस प्रेशर उसको आर्टीरियल प्रेशर के निस्बत से कंट्रास्ट करके वीनस प्रेशर. सो दी all these veins will empty into where? Central point where all the veins converge, they bring the blood, it is the right atrium. So right atrial pressure is known as central venous pressure. Because what is this? CVP, it is the pressure in the right atrium, and we have mentioned several times, it is 0 millimeter of mercury. So all the veins, jitna bhi pressure ho, they conduct their blood to this 0 millimeter of mercury pressure. So उससे पहले जरा ऊपर होगा और ऊपर होगा, and venous end of the capillaries पे जहाँ से शुरू होती हैं vein, that is 10 millimeter normally. Normally it is 10 millimeter of mercury. So central venous pressure is the pressure in the right atrium. That is 0 millimeter of mercury normally. This right atrial pressure, अब इसको हम CVP बोलें, सेंट्रल वीनस प्रेशर और राइट एट्रियल प्रेशर, ये दोनों एक बात है. ये किस पे डिपेंड करना चाहिए? जितना ब्लड में उसमें आ रहा है उस पे डिपेंड करना चाहिए, venous return पे. If the venous return is more, that right atrial pressure should be more. 0 है तो 1 हो जाए. So right, it depends upon me. अगर 0 से भी कम हो जाए तो माइनस में चला जाए. If the venous return is very low, so it may go into minus. 0 से कम हो जाएगा. So venous return is the main factor on which it should depend. It depends on the venous return. दूसरी किस पे डिपेंड करना चाहिए? This blood is being collected in the chamber of the heart. Right atrium is one of the chamber of the heart. So heart, if it is pumping vigorously, this blood will be pumped very quickly, so it will be emptied, the pressure will fall. If the heart is not pumping vigorously, heart is not normal, pumping weakly, then the venous pressure, central venous pressure may increase. So it is the pumping ability of the right ventricle. It is right ventricle. Right atrium की बात कर रहे हैं तो right ventricle. Right ventricle, if it is pumping effectively, then this venous pressure will remain low. If it is not pumping effectively, it is weak pump, right ventricular failure, for example, we will discuss at proper time, जब आएगा time उसका. So this venous pressure will increase. In right ventricular failure, there is increased venous pressure. वही तो हम देख रहे हैं आगे हमने. So central venous pressure, ये दो बड़े factor हैं. Total venous return, any factor which increases or decreases venous return may affect the central venous pressure, right atrial pressure. Or any factor which increases or decreases the pumping ability of the heart will affect the central venous pressure.
अगर ये विगरसली पंप करता है, दिस विल रिड्यूस. अगर ये फोर्सफुली पंप नहीं करता, वीकली पंप करता है, देन द सेंट्रल वीनस प्रेशर में इंक्रीज. और ये इफ द वीनस रिटर्न इज मोर, it may increase above 0 millimeter of mercury central venous pressure, and if it is more venous return is there. हम देखेंगे what are the factors which can increase or decrease venous return. What are the factors which can increase the pumping ability of the heart, or they can decrease the pumping ability of the heart. So all these इनको control करने वाले factor will be controlling the central venous pressure. Cardiac output is also regulated by these factors. यही दो चीजें जो हैं, यही दो चीजें कार्डियक आउटपुट को भी कंट्रोल करनी है. वी नो इट. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू वीनस रिटर्न. तो वीनस रिटर्न ज्यादा है, कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, वो कम है नॉर्मली. और इट इज द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट. इफ द हार्ट इज पंपिंग विगरसली, कार्डियक आउटपुट शुड बी गुड. So these are the factors which also affect the cardiac output as well. So veins have got very important role in the regulation of cardiac output. Then blood pressure. Cardiac output पर the blood pressure depend करता है. We have talked about there are two major factors which determine the blood pressure. Is one is cardiac output and second is peripheral resistance. तो cardiac output veins control कर रही हैं. तो इसका मतलब है blood pressure को भी control कर रही हैं veins. So these are we are going to see. Now this depends upon, जैसे मैंने कहा ये सॉरी मैं वापस जाता हूँ, ये इसको जरा elaborate कर रहा हूँ. That is this central venous pressure depends upon venous return. तो venous return ये bullet wise line wise नहीं आ रही. Venous return when blood volume increases, venous return कब बढ़ेगा? If there is more blood volume, venous return, so more filling of the veins. इसको हम आगे देखेंगे. उसको हम क्या कहते हैं? That is the mean circulatory filling pressure. That will increase. लेकिन अभी उसका नाम नहीं लेते हैं. You can imagine if the blood volume has increased. I have received extra volume of the blood. 1 liter blood डाल दिया है, fluid डाल दिया है. Increase blood volume will increase the venous return. It's simple thinking है. उसकी रीजन, साइंटिफिक रीजन तो हम आगे बात करेंगे. साइंटिफिक रीजन इज दिस इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज द मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर. वो हम देखेंगे थोड़ा सा फर्क के साथ. मीन सर्कुलेटरी, मेरा 5 लीटर ब्लड है जितना मीन वॉल्यूम, मैं बोल देता हूँ वो that term. Mean circulatory filling pressure is, and you should imagine if this 5 liter of blood is filling my vascular system, if I stop all the heart activity, फर्ज करते हैं, फर्ज करना पड़ेगा, imagine करें, this vascular capacity and the blood volume, अगर हम हार्ट की पंपिंग को रोक दें, there will be equal distribution of pressure. प्रेशर हर जगह बराबर हो जाएगा. ये प्रेशर एआर्टा में ज्यादा है इसलिए वहां पंप हो रहा है, वेन्स में कम है, वो मैकेनिज्म है. अगर इफ यू स्टॉप द हार्ट एक्टिविटी, तो यू अलाउ द टाइम, if you allow the time, the pressure inside the vascular system will be only because of the filling of this volume. इसलिए इसको कहते हैं दी मेन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर. ये जब 5 लीटर के बजाय अगर 6 हो जाए तो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर ज्यादा होगा. इस पे डिपेंड करता है वीनस रिटर्न. ये आगे हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस द कार्डियक आउटपुट एंड द रेगुलेशन ऑफ दिस वीनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट. पूरा चैप्टर है, 2 लेक्चर लेंगे हम इंशाल्लाह. सो व्हेन द ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज, सिंपली अगर आप समझना चाहते हैं, यू कैन इमेजिन ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा ब्लड आ रहा होगा ना. ये सारा blood volume is being run by the veins into the ventricle, into the artery, right atrium. So there will be increased venous return and there will be increased CVP. हम CVP भी याद है. This will increase the right atrial pressure. That will increase. और मैंने जो अभी define किया, increased blood volume increases the mean circulatory filling pressure, systemic filling pressure. उसको बोल दें तो वो उस पर डिपेंड करता है वीनस रिटर्न. वीनस रिटर्न ज्यादा होता है. ये भी बोल देता हूँ, नॉर्मल मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर इज 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. हमारा मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर इज 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वो 8-9 हो जाएगा, इट विल इंक्रीज दी वीनस रिटर्न. देन सेकेंड फैक्टर विच कैन
increase the central venous pressure is the large vessel tone. Large vessel tone, ये जो veins हैं, big vessel तो यही है ना, large vessel tone. Big veins जो हैं, aorta को भी डाल लें, उनके भी डाल दें, उनके जरा टोन को बढ़ा दें, blood will be pushed to the arterial side. लेकिन large veins की बात करें, if the veins are large veins, if their sympathetic system is active, their tone will increase. Tone किसको कहते हैं? Partial state of contraction of skeletal muscle, इसको skeletal muscle tone कहते हैं. There is partial discharge of the sympathetic supply to the all the vessels, उसको sympathetic tone कहते हैं. सारे स्मूथ मसल्स ऑफ दी सर्कुलेटरी सिस्टम, उनको हर वक्त एक सिंपैथेटिक डिस्चार्ज मौजूद होता है. बेसिक उसको कम करें तो डायलेटेशन होगी, उसको बढ़ाएं तो कंस्ट्रिक्शन होगी. सो दैट टोन, अगर वो टोन ज्यादा है, इफ सिंपैथेटिक सप्लाई टू द वेन्स इज इंक्रीज्ड, so their volume will be reduced more, this blood will be pushed as venous return will increase, and cardiac, the central venous pressure will also increase. और decreased tone की खास बात है, इसको जरा गौर से देखें, ये सिंपल गुजरने की बात नहीं है, ये बातें तो समझ आ गई. Decreased tone in arterioles. आर्टेरियोल कौन से हैं? वो वेन से पहले कैपिलरीज हैं, कैपिलरी से पीछे आर्टेरियोल्स हैं. आर्टीरियल साइड वाली बात कर रहे हैं. उनकी जो टोन है, उनकी जो सिंपैथेटिक सप्लाई है, इफ देयर सिंपैथेटिक सप्लाई इज रिड्यूस्ड, क्या होगा उनको? दे आर रेजिस्टेंट वेसल. अगर उनकी सिंपैथेटिक टोन इज रिड्यूस्ड, डाउनवर्ड एरो है. If their sympathetic tone is reduced, more blood will be flowing in the arteriole, more capillary blood flow will be there because of the less resistance to the flow. So their reduction in the tone in the arteriole causes more blood flow in the capillaries, causes more blood flow into the veins, and causes increased central venous pressure. ये जरा नाजुक पॉइंट है, इसको याद रखना. लार्ज वीनस टोन इंक्रीज करने से कार्डियक आउटपुट, एंड आर्टीरियल साइड पे आर्टीरियोलर टोन डिक्रीज करने से बढ़ता है, बिकॉज ये रेजिस्टेंट वेसल है. अगर इनकी टोन कम करेंगे, मोर ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज एंड देन वेन्स, वेन्स में भी ज्यादा ब्लड जाएगा, so they will increase blood flow into the veins because of this arterioles. डायलेट होने से ये डायलेट हो जाएंगे. Decreased tone means dilatation. They will be dilated. Increased tone is vasoconstriction. So decreased tone is decreased resistance, that will increase the blood flow into the capillaries, then into the veins. Finally, मैंने vein लिखा हुआ है. This blood will be brought into the veins, and when the blood flow into the vein increases, and this will increase the venous return, and this will increase the cardiac output. So that's how venous return affects the central venous pressure. अब इनको हम फर्दर भी डिटेल में जा सकते हैं. ब्लड वॉल्यूम कब कब बढ़ सकता है, ये लार्ज वेसल टोन कब कब बढ़ सकती है या कम हो सकती है, और ये आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस कब कम हो सकता है, कब ज्यादा हो सकता है. फर्दर डिटेल मौजूद है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस इज वीनस रिटर्न डिपेंड्स अपॉन दीस, और इफ दीस थ्री फैक्टर्स कैन इंक्रीज द वीनस रिटर्न, दे विल इंक्रीज द सेंट्रल वीनस प्रेशर. दूसरा क्या बोला था हमने? दूसरा फैक्टर ऑन विच सीवीपी डिपेंड्स. हम तो ये देख रहे हैं ना, सीवीपी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन द वीनस रिटर्न. दूसरा फैक्टर पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट. Pumping ability of the heart, pumping ability of the right. We are concerned with the central venous pressure, right atrial pressure is the right ventricle proper चीज है जो जिसको हमने बोलना है. Increase pumping, simple as that. अगर heart right ventricle is pumping forcefully, it will empty it and it will receive the blood. Central venous pressure will remain low. वो जीरो रहेगा, जीरो से भी कम हो सकता है. विगोरस पंपिंग कैन कॉज दी 0 millimeter mercury central venous pressure. So increase pumping, quick emptying of this right atrium as well. पंपिंग का मतलब है ये पंप कर रहा है तो ऊपर से ब्लड नीचे आएगा, तो quick emptying of the right atrium as well. So pressure is reduced, central venous pressure जीरो से भी कम हो जाएगा. एंड वीकनेस ऑफ द हार्ट, जैसे हम हार्ट फेलियर में डिस्कस करेंगे, हार्ट फेलियर के चैप्टर है उसमें हम लेक्चर लेंगे. राइट साइडेड फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर. तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो, हार्ट फेलियर, ऑफ कोर्स नेचुरली दिस पंपिंग नहीं हो रही होगी तो ब्लड कहाँ जाएगा?
इसमें भी खड़ा होगा, पीछे भी पुश होगा, राइट एट्रियल प्रेशर विल इंक्रीज, उसके पीछे भी वेनस प्रेशर विल इंक्रीज, इसलिए एडिमा हो जाता है। इफ द राइट वेंट्रिकल फेल्स, सारी बॉडी में एडिमा हो सकता है। Failure of the right ventricle causes increased pressure in the central venous pressure and the veins में सारा pressure, और फिर veins का pressure is shifted to the capillary and there is more leakage of the fluid, edema हो जाता है। So weakness of the heart, right, especially right की बात कर रहे हैं, this will increase the central venous pressure, 0 नहीं रहेगा, +4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, हम देखेंगे कहाँ तक जा सकता है। So these two big factor which will determine the central venous pressure. So normal central venous pressure is 0. 0 का क्या मतलब है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यही है, दोनों बराबर हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये बराबर है, एज कंपेयर टू दिस इज इक्वल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं 0 मिलीमीटर मरकरी, 0 प्रेशर। सो एबनॉर्मली हाई जब होगा, कब होगा? हार्ट फेलियर में, या एग्रेसिव फ्लूइड डाल दें। इट मे गो टू 20 to 30 मिलीमीटर मरकरी इन severe cardiac failure. Severe cardiac failure हो तो then this central venous pressure, अभी हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड में, when heart is failing, back pressure is increasing, central venous pressure, veins और edema वगैरह की अभी हमने बात की। So there is severe cardiac failure में pressure may go to 20 millimeter of mercury, 30 millimeter of mercury. Massive and quick blood or other fluid transfusion, किसी को हमने ड्रिप लगाई है, ब्लड लगाया है, तो अगर आपने देखा होगा कितना एक एक कतरा आता है, पेशेंट लेटा हुआ शिकायत करता है कि मैं थक गया, मेरा बाजू थक गया, इसको तेज करें। नो, क्विक, if you give more transfusion and quick transfusion, it will load the blood very quickly. Slow देने से तो gradually वो redistribute हो रहता है the fluid. अगर तेजी से देंगे then it may cause this increased central venous pressure. So massive and quick blood transfusion and other fluids, वो देने से this may go, इसलिए हमेशा ब्लड ड्रिप और दी एनी अदर ड्रिप intravenous infusion, they are given drop by drop. So this is high. Now lower limit minus तो 0 है, -3 to -6 it can go to -5. तो -3 to -5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्या होगा? कब ये कम होगा? कम उल्टे बोले ना, दैट इज वेरी विगरस। ये सीवियर कार्डियक फेलियर है, उसका अपोजिट, हार्ट इज वेरी फोर्सफुल, इट इज विगरसली पंपिंग। वो कब होगा हम देखेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम causes vigorous pumping. So the very vigorous pumping of the right ventricle, it will cause the very quick emptying, and pressure inside the right atrium may be 0, below 0, -1, -2 or up to -5, or severe hemorrhage. Severe hemorrhage में कब काम होगा? Total blood volume has reduced, ब्लड आ ही नहीं रहा तो क्या प्रेशर होगा? सीवियर हैमरेज, ब्लड सारी वेन्स खाली पड़ी ब्लड में, जो सेंट्रल वीनस प्रेशर, सॉरी वो जो मैंने बोला मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, दैट विल बी रिड्यूस्ड। जब वो रिड्यूस होगा तो वीनस रिटर्न इतना कम होगा कि ये 0 से भी नीचे होएगा, -3 में होगा। दैट इज सीवियर हैमरेज, लो ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा, इट विल रिड्यूस दी सेंट्रल वीनस प्रेशर, 0 से भी नीचे ले आएगा। ये वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर तो हमने राइट एट्रियम के प्रेशर को बोला है। वीनस प्रेशर जो वेन्स में प्रेशर है इससे ऊपर होगा। वीनस प्रेशर इनसाइड द इंफीरियर वेना केवा विल बी मोर देन दिस, क्यों? ब्लड इज फ्लोइंग टू दिस 0, वो 1 तो होना चाहिए ना कम अज कम। सो दी एस्टिमेट कैसे करें वेन्स का प्रेशर? ये मेरी वेन्स, पता नहीं मेरा हाथ नजर आ रहा है या नहीं, दे आर डिस्टेंडेड वेन्स, ये डिस्टेंडेड वेन्स हैं, इनमें प्रेशर होगा ना। This distension is showing me the estimation of the pressure. If the veins are visible, distended veins, तो प्रेशर दिखा रही है ना। इसको मैंने उल्टा कर दिया हाथ को, no veins visible, तो प्रेशर गिर गया, because gravity has pulled the blood. Gravity has pulled the blood. Now these veins are empty, pressure has fallen. So engorgement of the veins is the rough estimation of venous pressure. Degree of distension of veins. Veins distended हो तो उनमें प्रेशर है, अगर distended नहीं हो, शॉक में जब होता है पेशेंट, आपने देखा होगा, अगर आपको हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुए या अपने पेशेंट या कभी
अस्पताल में देयर इज, जब बंदा शॉक में होता है वेन ही नहीं मिलती, मेरी वेन अभी नजर आ रही है, लेकिन जब when the person is in shock, pressure has fallen in the veins, venous pressure भी कम हुआ है, then the veins नजर नहीं आती, वो डॉक्टरों को भी बुलाना पड़ता है कि हाँ इसको ड्रिप लगाएं. So degree of distension of veins shows us it is the rough estimation of the venous pressure, कि वेन्स में कितना प्रेशर है, स्पेशली नेक वेन्स. ये जो नेक वेन्स है ना, ये बताती हैं वीनस प्रेशर. नेक वेन्स आर नॉट विजिबल, ये आमतौर पर नेक वेन्स आर नॉट विजिबल, दे आर ओनली विजिबल व्हेन यू आर सिंगिंग, जब कारी तिलावत कर रहा है ऐसे होता है. आपने देखो ना, नेक वेन्स आर नॉट विजिबल, लेकिन जो जोर से बोल रहा है गाय, नेक वेन्स बिकम विजिबल. तो neck veins are showing us the venous pressure. So especially neck vein, बाकी body की veins भी engorgement of the veins, it gives us a rough estimation of the central venous pressure, or especially neck vein. Neck veins, if they are distended, there is high central venous pressure. Normal, मेरा my central venous pressure is normal, zero है, इस वक्त जीरो है, मेरी नेक वेन्स आर नॉट विजिबल. अगर मेरे खड़े होते हुए भी नेक वेन्स आर विजिबल, इट मीन माय सेंट्रल वीनस प्रेशर इज वेरी हाई. ये जीरो नहीं है, 2 है, 3 है, वो ज्यादा हो जाएगा. So the especially neck vein, they are helpful in the estimation of venous pressure. Normally no distension in the neck veins in sitting or standing position. किसी बंदे के खड़े होने में, लेटे होने में there is no distension of vein, neck veins नजर नहीं आती. जोर लगाने की और बात है. When I am exerting, there is increased pressure lungs में, तो वो फिर वेन का प्रेशर बढ़ता है. जब कारी जोर से तिलावत कर रहा है या गाना गाने वाला जोर से गाना गा रहा है, then there is pressure on the veins, और उसमें प्रेशर बढ़ता है, वो और बात है. Normally standing position में, sitting position में, neck veins are not visible. If they are visible in standing position, sitting position, normally this is heart failure. Heart failure हम इसको बोलते हैं, right sided failure में there is. So the 10 to 15 millimeter of mercury अगर right atrial pressure increase कर जाता है, then distension of neck veins, खड़े हुए भी उसकी neck veins are distended. So this distension of general body veins and especially neck veins, this gives us the estimation of the venous pressure, and we are concerned with the increase. Heart failure में there is increased venous pressure, और वो नजर आएगा neck veins की engorgement से. So that's how we estimate the blood pressure. Veins, do they offer some resistance to the blood flow? Are they resistant vessel? They are not resistant vessel. But all the vessels have got some resistance. Aorta is not resistant vessel. Bigger arteries are not resistant vessels. Veins are also not resistant vessels. Resistant vessels are arterioles, metarterioles, वो छोटे vessels हैं. असली रेजिस्टेंस वो जो हमने 1 PRU रेजिस्टेंस सिस्टमिक सर्कुलेशन का कैलकुलेट किया, दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इन द आर्टरियोल्स, इन द रेजिस्टेंट वेसल. वेन्स का रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है, बट स्टिल दे आर वेसल. अगर वो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो देयर शुड बी सम, उनकी भी वेजो कंस्ट्रक्शन होती है. अभी हमने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड में वीनस टोन इज इंक्रीज, तो वीनस रिटर्न बढ़ता है. सो जब वो कम करते हैं, देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस. तो वीनस रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वीनस रेजिस्टेंस. ऑलमोस्ट जीरो इन द डायलेटेड बिगर वेसल. वो तो इतने खुले खुले वेसल है, ब्लड को कोई रेजिस्टेंस नहीं करते. बट अगर उनकी कंस्ट्रक्शन किसी वजह से वो रेजिस्टेंस कर सकते हैं, एंड अगर हम बाहर से उनको बंद कर दें, ये वेन्स हैं, इनको मैं बाहर से प्रेशर लगा दूं, तो रेजिस्टेंस तो हो जाएगा ना वेन्स में. सो ऑलमोस्ट जीरो इन द डिस्टेंडेड वेन्स. लार्ज वेन्स when they are entering into the thorax, large vein कहां से दाखिल हो रही हैं, these veins are entering into the thorax, and lower abdomen से जो inferior vena cava बन रही है, it is entering into the thorax, are compressed, impediment in the flow. इनकी जब thorax में दाखिल होती हैं, वहां पे उन पे compression है, बाहर से compression है. When they enter into the thorax, तो उनमें compression की वजह से there is some resistance. आगे स्लाइड में डायग्राम में खोल रहे हैं. तो large veins entering into the thorax are compressed, and there is impediment, there is resistance, there is रुकावट in the flow of the blood. Some resistance is there. एक बात. Rib collapse, ये large vein है, it is entering into the
सम वेन्स एंटरिंग रिब के ऊपर से जब गुजरेगी, क्लेविकल मैं बोल रहा हूँ, रिब के ऊपर से जब गुजरेगी कोई वेन्स, तो ये तो ढीली वेसल है ना, व्हेन इट पास ओवर द ब्रिज देयर इज किंक, ये जो फोल्ड हो रही है वेन्स, उस फोल्डिंग में देयर इज सम रेजिस्टेंस, उसमें कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है। आप छोटा पाइप, मामूली पाइप लें तो किसी जगह पे, सख्त जगह पे अगर वो गुजरेगा तो उसमें पानी बंद होने का, मोटा पाइप हो तो वो नहीं बंद होता, लेकिन वेन्स की थिन पाइप हो, देयर मे बी सम रिड्यूस इन दी फ्लो, सो देयर इज रिब कोलैप्स, शार्प टर्न ओवर द फर्स्ट रिब, जब वेन्स गुजरती हैं, डायग्राम में आगे आएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोलैप्स, ग्रेविटी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो हमारी नेक वेन्स हैं, ग्रेविटी है, ग्रेविटी इज पुलिंग द ब्लड डाउनवर्ड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको कंप्रेस कर रहे, ब्लड इसमें ग्रेविटी ने खींच लिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनको बंद कर देगा, इसलिए नेक वेन्स हमें नजर नहीं आती, दे आर कोलैप्स्ड, क्योंकि ब्लड जो भी उनमें आता है ग्रेविटी उनको खींच के नीचे ले जाती है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको कोलैप्स रखते हैं, तो इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोलैप्स, ग्रेविटी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेविटी ने ब्लड पुल कर लिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको क्लोज कर, there must be some resistance here as well. Then the abdominal pressure, abdomen का pressure, स्पेशली एब्डोमिनल ऑर्गन्स का भी प्रेशर है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी है मिसाल के तौर पर, वो फर्दर इंक्रीज इन द एब्डोमिनल प्रेशर है, तो एब्डोमिनल प्रेशर कोलैप्स, दैट इज एब्डोमिनल ऑर्गन्स, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, प्रेगनेंसी हो तो ये भी बढ़ जाता है, दैट कॉजेज कंप्रेशन ओवर द बिग वेन्स, जो उधर से आ रही हैं हमारी, उनके ऊपर कंप्रेशर है, सम रेजिस्टेंस इज देयर, and due to these some resistance to the blood flow does exist in the veins as well, वरना तो उनको हमने वो खुले खुले पैसेज बोले हुए, लेकिन इन जगहों पर कोलैप्स ऑफ ये ग्रेविटी वाला कोलैप्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कोलैप्स, किसी रिब के ऊपर से गुजरने वाली वेन कोलैप्स और एब्डोमिनल प्रेशर कोलैप्स, ये कोलैप्स कर सकते हैं, तो सम रेजिस्टेंस ड्यू टू दीज, सम रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो डज एग्जिस्ट, all these causing pressure in the peripheral veins 4 to 6 millimeter of mercury more than the CVP in recumbent position. Recumbent position में, lying position में pressure inside these veins is 4 to 6 millimeter higher than this, तो इसलिए blood flow continue करता है, वो हालांकि 10 से शुरू हुआ था, 10 से लेकिन ब्लड फ्लो, लेकिन दिस ऑल दीज प्रेशर, ये जो एब्डोमिनल प्रेशर या ये रिकमेंड पोजीशन में 4 to 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर वेन्स में रहता है जनरली, और उस वजह से इसके मुकाबले में सेंट्रल वीनस प्रेशर के मुकाबले में ये वो डायग्राम दिखा रही है, दिस वेन इज पासिंग ओवर दी रिब, रिब के ऊपर, जब ये रिब की बोन है उसके ऊपर से पास करते हुए यहाँ थोड़ा सा कोलैप्स है, दिस अपर रेजिस्टेंस, और ये नेक वेन है, नेक वेन में ब्लड ग्रेविटी इसको पुल कर लेती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बंद कर देता है, कोलैप्स, और एब्डोमेन में जो एब्डोमिनल प्रेशर कोलैप्स, ये कोलैप्स कर, तो ये नेक, ये जो थोरेक्स में एंटर होने वाले वेसल है उनका ये एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से, ये तीनों जो है इस वजह से देयर इज सम रेजिस्टेंस इन द वेन्स एज वेल, ये प्रेशर कोलैप्स है। इफेक्ट ऑफ हाई सेंट्रल वीनस प्रेशर, ये 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर है, सेंट्रल वीनस प्रेशर, अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होंगे? इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर है अगर, तो क्या मतलब होगा? 0 मिलीमीटर के बजाय 0 मिलीमीटर पे ब्लड जा रहा है, अगर ये 1 हो जाए तो क्या होगा? वेन्स को क्या होगा? उनको मुश्किल होगा ब्लड जाने में, 2 हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा, सो इट विल कॉज द पूलिंग ऑफ द ब्लड इन लार्ज वेन्स। जितना सेंट्रल वीनस प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, लार्ज वेन्स में ब्लड की पूलिंग, बैक डैमिंग of the blood will increase, so pooling of the blood in large vein will occur and pressure in the veins will be more, वो 4 to 6 normal है, वो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, so that will venous pressure will increase. Severe cardiac failure, जैसे हमने कहा central venous pressure is very high, 4 to 6 +4 +6, हमने कहा था पिछली कि अगर हार्ट फेलियर हो जाए, वन ऑफ द कॉज ऑफ द इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर जब 5, 6, 20 तक ले जाता है, 30 तक ले जाता है, +6 और +6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर कार्डियक फेलियर है, इट विल कॉज एनगॉर्जमेंट ऑफ द वेन, इसी वजह से वीनस प्रेशर थ्रू आउट द बॉडी विल इंक्रीज, और मैंने कहा था एडिमा हो जाएगा,
वीनस प्रेशर सारी बॉडी में बढ़ गया, कैपिलरी प्रेशर भी बढ़ गया। कैपिलरी में प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो दैट लीकेज ऑफ द फ्लूइड विल इंक्रीज। हम डिस्कस करेंगे एक दो लेक्चर के बाद दी माइक्रो सर्कुलेशन जब डिस्कस करेंगे कि अक्रॉस द कैपिलरीज व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच कॉज द फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड। सो दिस प्रेशर इनसाइड मीन द कैपिलरी प्रेशर जिसको कहते हैं, दैट विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द मोर वीनस प्रेशर। सीधी सी बात है, इफ द प्रेशर इन द वेन्स इज 20, तो कैपिलरी का प्रेशर अगर 10 है, 15 है, ब्लड विल फ्लो? नो, कैपिलरी प्रेशर शुड बी मोर देन द वीनस प्रेशर सो द ब्लड फ्लो में बी कंटिन्यूअस। तो कैपिलरी प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। वीनस प्रेशर इंक्रीज करता है तो कैपिलरी प्रेशर हैज टू इंक्रीज टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो onward. So the capillary pressure will increase, and it is very important pressure which determine the leakage of the fluid. So edema will occur. So increase engorgement of the veins throughout the body will cause increased venous pressure throughout the body, and this will cause edema. Generalized edema होता है right ventricular failure में, because right ventricle is receiving the blood from whole of the body, and अगर ये इसमें failure है तो it will cause the engorgement of the veins and pooling of the blood in all the systemic vessels, and this will cause increased capillary pressure throughout the systemic circulation, and it will cause generalized edema and asarka. Generalized edema will occur. Right sided failure में बड़ा sign है generalized enlargement the edema. A lot of blood volume may be lost into the interstitium within a few minutes of the increased venous pressure. इसको red में लिखा हुआ है, रेड में लिखा हुआ है कि दिस इज सो इंपॉर्टेंट, दिस लीकेज ऑफ द फ्लूइड, दैट इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एडिमा। एडिमा में फ्लूइड निकल जाएगा, ब्लड वॉल्यूम, so a lot of blood volume may be lost into the interstitium because of this edema. edema के तौर पर फ्लूइड बाहर निकल गया। what is edema? Extra volume of the blood filtered into the interstitium. ब्लड से निकल कर इंटरस्टिशियम में फ्लूइड जमा हो गया, दैट इज एडिमा। तो अ लॉट ब्लड वॉल्यूम मे बी लॉस्ट इनटू द इंटरस्टिशियम बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज वीनस प्रेशर। सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर के बढ़ने से थ्रू आउट द वीनस वेन्स में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दिस विल कॉज इफेक्ट ऑफ हाई इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर। वही बात होगी, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर अगर ज्यादा है, बाकी कुछ ना हो, सिर्फ इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो, एंड द कंडीशन इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कॉमन फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है फीमेल में, दैट इज द प्रेगनेंसी में देयर इज इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि कौन सी वेन्स अंडर प्रेशर हैं, और कुछ भी ना हो, हार्ट फेलियर नहीं है, ठीक ठाक है, हार्ट इज ओके, फर्ज करें, बट इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इज मोर, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी प्रेशर ओवर द एब्डोमिनल वेन। तो एब्डोमिनल वेन कहां से बन रही हैं? लेग से आ रही हैं वेन्स, ऑल दो लेग वेन्स। So the normal intra-abdominal pressure is 6 millimeter of mercury. Intra-abdominal pressure, वेन की बात नहीं कर रहे, intra-abdominal pressure। तो वेन्स का प्रेशर इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इंट्रा-abdominal प्रेशर is 6 millimeter of mercury, अगर बाहर वाला प्रेशर 7 हो तो वो तो बंद हो जाएंगी। So veins का प्रेशर should be more than this. If the intra-abdominal pressure 6 से ज्यादा हो जाए, 10 हो जाए, वेन्स का प्रेशर उसे बढ़ना चाहिए। अगर उससे नहीं बढ़ता तो वो तो बंद हो जाएंगी, फिर ब्लड वापस कैसे जाएगा? तो नॉर्मल इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इन यू एंड मी नॉर्मल इज दिस। इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर विल कॉज इंक्रीज वीनस प्रेशर इन द लेग्स में, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, लेग्स में प्रेशर बढ़ा है, तो ये तब भी लेग्स का प्रेशर बढ़ेगा तो इनको ओपन करके ऊपर जाएगा। तो देयर इज इंक्रीज प्रेशर इन द लेग वेन्स, इसलिए वेरिकोज वेन्स होती हैं, पाँव में एडिमा हो जाता है प्रेग्नेंट लेडीज को, अगर ज्यादा हो तो इतनी वेन्स नजर आने लगती हैं। So there is increased intra-abdominal pressure. Pressure in the leg veins must rise above the abdominal pressure to maintain the venous pressure. Leg vein में प्रेशर क्यों ज्यादा हो रहा है? एब्डोमेन में अगर 10 हो गया है तो वेन्स कोलैप्स हो जाएंगी ना, तो इन वेन में 10 से ज्यादा होगा तब वो खोलेंगी। So the pressure in the leg veins must rise above the abdominal pressure to maintain, to open these collapsed abdominal veins, उनको open करने के लिए leg का pressure, leg veins का pressure बढ़ेगा, and increased venous pressure will cause edema in the legs. ये this is very common feature in pregnancy और ascites एक और condition है, there is collection of the fluid, वो liver cirrhosis में या liver diseases में there is collection of the fluid inside the abdomen, और पेट फूला हुआ है, उसके अंदर fluid भरा हुआ है, शायद आपने कोई पेशेंट देखे हो, देयर इज टेंस एब्डोमेन, तो दैट विल इंक्रीज edema, that
that will also cause the increase. So increased venous pressure in the leg veins will cause edema in the leg and feet. कोई जनरलाइज एडिमा नहीं है ये, जनरलाइज एडिमा तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर से हमने बात की थी, सारी बॉडी के सारे वेन्स एंगॉर्ज है। यहाँ तो सिर्फ एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ने से लेग वेन्स एंगॉर्ज हो गए, लेग में एडिमा, फीट में एडिमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन प्रेगनेंसी बात कर दिया है, इंट्राएब्डोमिनल ट्यूमर या पेट में कोई ट्यूमर हो जाए प्रेगनेंसी की बजाय, एंड एसाइटिस, एसाइटिस इज द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमेन एंड द पेरिटोनियम, उसको हम एसाइटिस बोलते हैं। एंड द एब्डोमिनल प्रेशर में बी 15 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इफ इट इज 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लेग वेन का प्रेशर शुड बी 20, उससे ज्यादा होगा। अगर 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो लेग वेन का प्रेशर शुड बी मोर देन 30, तब ब्लड फ्लो विल बी पॉसिबल। तो लेग वेन का प्रेशर जब 30 होगा, देयर विल बी एडिमा, एडिमा विल अकर। So that's ये कुछ a few functions हमने इसमें बात की है। नेक्स्ट लेक्चर ये हम venous सिस्टम पे इफेक्ट we will discuss continue this function of veins आगे भी जारी रखेंगे, एंड अगले लेक्चर में भी इंशाल्लाह यही बात हम फाइनल तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी फंक्शंस ऑफ वेन्स, अगेन उसको जारी रखेंगे टू, और होप आप इसको फॉलो करें। इफ यू हैव गॉट सम क्वेरीज, सम क्वेश्चंस, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।